Hello students, I hope you will be fine and safe. In the previous lecture, we have learned first poem and today we are going to learn second lesson 1.2, the thief's story. Okay, it is a very funny lesson and simple and easy. Okay, it is a story of small time thief. Okay, or you can say it's a small time thief whose story was given in this lesson, the thief's story. Okay, the writer or the author of the lesson is Ruskin Bond. Okay, Ruskin Bond is an Indian writer but British accent. Okay, so don't be confused. He is an Indian writer. The thief story, narrator or author Ruskin Bond. Okay, पेज नंबर 7. पेज नंबर 7 पे आपको फर्स्ट एक्टिविटी में एक स्मॉल स्टोरी दी गई है और उनमें से कुछ जो वर्ड्स और फ्रेजेस है उसका मीनिंग आपको गेस करके लिखना है या रिप्लेस करना है. मींस यू हैव टू रिप्लेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस और वर्ड्स गिवन इन दिस स्मॉल स्टोरी. जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट दिया है बिकम अवेयर. सो बिकम अवेयर का मीनिंग क्या है? बिकम अवेयर का मीनिंग है रियलाइज्ड. ओके, सो बिकम अवेयर मीन्स रियलाइज्ड. देन सेकेंड जो हमारा वर्ड है ऑलवेज. सो ऑलवेज इसका मीनिंग दिया गया है पैसेज में इनवेरिएबली. ओके, इनवेरिएबली मीन्स ऑलवेज. क्लियर? सो these are the words or phrases, means these are the meanings or words, phrases given in the paragraph. You have to find out the meanings or phrases or words from the paragraph and you have to replace these given words on page number 7. हमने लेसन को शुरुआत नहीं की है, तो पहले मैंने एक्टिविटी आपको समझा दिया. तो फर्स्ट एक्टिविटी हमने लर्न किया. नाउ पेज नंबर 8. We are going to start actual lesson on page number 8, the thief's story. Okay. First we will learn the introduction of narrator of writer. The name of the writer, as you know, Ruskin Bond, 1934, is an Indian author of British descent. Remember, Ruskin Bond is an Indian author of British descent. He lives with his adopted family in Landor in Mussoorie, India. India में मसूरी में वो रहते हैं. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. मतलब जो बच्चों के लिए उन्होंने खास काम किया था, जो ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर, बच्चों का जो लिटरेचर होता है. व्हाट इज लिटरेचर? लिटरेचर इज स्टोरी, पोएम, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स एक्सेट्रा. ये जो हमारा साहित्य है, खास करके बच्चों का साहित्य, बच्चों की कविताएं या उनकी स्टोरीज. सो उसका जो काम उन्होंने किया था रस्किन बॉन्ड ने, उस काम को एक रिकॉग्निशन दिया, एक रिकॉग्नाइज किया. किसने? इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन ने. He got the Sahitya Akademi Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra for his published work in English. उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1992 में. He was awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014. Padma Bhushan ये बहुत ही highly respected award है, हाईली प्रेस्टिजियस अवार्ड है इंडिया का, जो उनको मिला है 2014 में, और पद्मश्री मिला था 1999 में. दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द नैरेटर ऑफ द ऑथर और राइटर. और अब हम थीफ स्टोरी शुरू करेंगे. आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल. आई वॉज मीन्स द नैरेटर वॉज, ऑथर वॉज, और राइटर वॉज स्टिल अ थीफ when he met Anil. राइटर जो था, मतलब राइटर मतलब रस्किन बॉन्ड नहीं है. ऐसा लिखने की एक स्टाइल है कि जैसे राइटर लिखते हैं तो वो खुद के बारे में लिखते हैं ऐसे हमें लगता है, लेकिन वो खुद के बारे में नहीं लगते थे. मतलब रस्किन बॉन्ड was not a thief. He is not a thief. Keep in mind. Okay, it's a style of writing. So I was still a thief when I met Anil. Writer was still a thief when he met Anil. And though only 15, I was an
experienced and fairly successful hand. Though only 15 means the narrator, the writer or the thief was only 15 years old when he met Anil. Okay, and though he was only 15 years old, the narrator was experienced thief. चोरी करने का उसे बहुत सारा अनुभव मिल चुका था, ऐसा वो बोलता है. He was experienced and fairly successful hand. Fairly successful means truly successful hand in thieves or in stealing, you can say. मतलब वो एक बहुत ही अच्छा हाथ साफ करने वाला चोर था, ऐसे हम बोल सकते हैं कि उसको 15 साल की छोटी उम्र में चोरी करने का बहुत सारा ज्ञान भी मिल चुका था. वो एक एक्सपीरियंस्ड थीफ बन चुका था और महज 15 साल की उम्र. नेक्स्ट, Anil was watching a wrestling match when I approached him. So when the narrator approached him, when narrator met him, when narrator went to meet him, that time Anil was watching a wrestling match. A wrestling match आपको पता है. He was about 25. He was means who was? Anil. Anil was about 25 years old and the narrator means the thief was only 15 years old. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple, enough for my purpose. So Anil was very easygoing guy. He was very frank guy. He was very kind, simple, open-minded guy, and it was very easy for the purpose of stealing for the thief, for the narrator. मतलब वो बहुत ही अच्छा इंसान था, एकदम सिंपल इंसान था, तो उसे फंसाना या उसके घर में चोरी करना, उसको लूटना नैरेटर के लिए बहुत ही इजी था. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. So राइटर को लगा कि बहुत देरी नहीं करनी चाहिए, या अगर लक उसके फेवर में है तो उसको जल्दी काम करना चाहिए, और he might thought that he might be able to get into young man's confidence. Means he thought that he might win the heart of, or he win the confidence of the young man Anil. मतलब उसे ऐसा लगा कि इतनी जल्दी मैं अनिल का जो कॉन्फिडेंस है वो जीत सकता हूँ, उसका विश्वास जो है वो विश्वास में जीत सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल आदमी था. You look a bit of wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. तो जैसे हम किसी फ्रेंड्स को देखते हैं, नए फ्रेंड को, तो हम उसकी तारीफ करते हैं. कोई अगर नया फ्रेंड हमें मिलता है तो पहले हम उसकी तारीफ करते हैं. तो वैसे ही नैरेटर ने उसकी तारीफ की, उसे बोला कि यू लुक अ बिट रेसलर योरसेल्फ, मींस यू लुक लाइक अ रेसलर. अरे भाई तुम तो एक रेसलर की तरह दिखते हो. मैंने कहा, मतलब नैरेटर ने कहा. अ लिटिल फ्लैटरी. व्हाट इज फ्लैटरी? फ्लैटरी का मीनिंग दिया है उसके बाजू में. फ्लैटरी मींस इनसिंसियर प्रेज. प्रेज वो भी इनसिंसियर, इट इज नॉट अ सिंसियर प्रेज. तारीफ करना अलग बात है, झूठी तारीफ करना दूसरी बात है. तो नैरेटर जो था वो नैरेटर झूठी तारीफ कर रहा था. इट वॉज नॉट अ सिंसियर प्रेजिंग, इट वॉज इनसिंसियर प्रेजिंग, मीन्स फ्लैटरी. सो इनसिंसियर प्रेजिंग मीन्स फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, ऐसा नैरेटर को लगा. So do you, he replied. Anil replied, so do you, means you also look like a wrestler. Anil ne reply diya, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. Or that thing, that flattery of Anil put the narrator off moment. मतलब उसको लगा कि नहीं, ये मेरी झूठी तारीफ है, क्योंकि at that time the narrator was also thin. वो भी थीन था, अनिल भी थीन था. लेकिन क्या हुआ कि रस्किन बॉन्ड, मतलब नैरेटर ने अनिल की इनसिंसियर प्रेजिंग की, वैसे अनिल ने भी नैरेटर की इनसिंसियर प्रेजिंग की. नेक्स्ट, well I said modestly I do wrestle a bit. The narrator said modestly. Modestly means what? Without boasting, in a humble way. The narrator said in a humble way that I do wrestle a bit. हाँ, थोड़ा बहुत मैं रेसलिंग कर लेता हूँ. वो करता नहीं था, लेकिन उसने कहा कि मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ रेसलिंग. What is your name? Hari Singh. I lied. The narrator lied.
द नैरेटर सेड अ लाई दैट हिज नेम वाज हरि सिंह. उसका नेम हरि सिंह नहीं था, लेकिन उसने झूठ बोला कि मेरा नाम हरि सिंह है. I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employers. So डायरेक्टर ने कबूल किया है कि वो हर महीने उसका नाम अलग अलग रख लेता था, बदलता था, because that name or that changing name kept the narrator safe from the police. पुलिस से वो सेफ रहता था. और उसके जो फॉर्मर एम्प्लॉयर्स थे, मतलब देखो नैरेटर कहता है कि उसके फॉर्मर एम्प्लॉयर्स मींस प्रीवियस एम्प्लॉयर्स मींस जिसको उन्होंने पहले लूटा था वो उसके एम्प्लॉयर थे. एम्प्लॉयर मतलब काम देने वाले, रोजगार देने वाले. मतलब देखो कितना फनी तरीके से राइटर कहते हैं कि जिसको उसने पहले लूटा था वो उसके भूतपूर्व या पुराने रोजगार देने वाले थे. तो उनसे बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए नैरेटर हर महीने उसका नाम चेंज करता था. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक अबाउट द वेल ऑइल्ड रेसलर्स हु वेर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट. सो इस एक दूसरे के इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने डिस्कशन शुरू किया, या अनिल स्टार्टेड डिस्कशन अबाउट द रेसलर्स, वेल ऑइल्ड रेसलर्स. वेल ऑइल्ड पता है ना, जो उनके बदन को ऑयल लगा हुआ होता है, उनको वेल ऑइल्ड बोलते हैं. सो वेल ऑइल्ड रेसलर जो पहलवान थे, उन पहलवान के बारे में डिस्कशन चालू हुआ. रेसलर्स हु वेर ग्रंटिंग. अब ग्रंटिंग का मीनिंग बाजू में दिया है. व्हाट इज ग्रंटिंग? ग्रंटिंग मीन्स मेकिंग लो गटरल साउंड. जैसे वो एक अलग प्रकार का साउंड निकालते हैं जब वो रेसलिंग करते हैं. तो रेसलिंग करते समय उनका एक अलग साउंड वो निकालते हैं एक दूसरे को एनकरेज करने के लिए, खुद को एनकरेज करने के लिए. सो द रेसलर्स वेर ग्रंटिंग मींस दे वेर मेकिंग गटरल साउंड्स एंड लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर. एक दूसरे को उठाना और एक दूसरे को पटकना, वो जो उनकी एक्टिविटीज रहती है, उस एक्टिविटीज के बारे में अनिल ने हरि सिंह के साथ डिस्कशन स्टार्ट किया. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. So राइटर को तो कुछ मतलब कहना नहीं था इसके बारे में, वो कुछ जानता भी नहीं था. So narrator didn't have much to say about these wrestlers. Anil walked away from that place and narrator also followed him casually. Normally he followed Anil. Hello again, he said. I gave him my most appealing smile. My most appealing smile. राइटर का बहुत अपील करने वाला स्माइल. What is appealing? Appealing means attention getting, attractive smile. अगर किसी का अटेंशन हमें लेना है या किसी को हमारी तरफ अट्रैक्ट करना है तो हम क्या करते हैं? स्माइल करते हैं. सो नैरेटर का एक स्टाइल था कि वो किसी भी व्यक्ति को उसके यहाँ अट्रैक्ट करने के लिए स्माइल करता था. तो the narrator Hari Singh gave his most attractive smile to Anil and said, I want to work for you. I said, but I can't pay you. Anil said. हरि सिंह ने कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ काम करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ. लेकिन अनिल ने कहा देखो भाई मेरे पास पैसे नहीं है. I can't pay you money for your work. You have to work here free. I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. और जैसे उसने कहा कि वो अनिल मतलब पैसे नहीं दे सकता है, तो राइटर थोड़ा कंफ्यूज हो गया. हरि सिंह कंफ्यूज. हरि सिंह थॉट दैट ही हैड मिसजज्ड हिज एम्प्लॉयर. उसको लगा कि अगर ये मेरे काम के पैसे नहीं दे सकता तो इसके पास लूटने के लिए तो कुछ नहीं होगा, तो मैं इसके यहाँ क्या लूटूंगा अगर इसके पास थोड़े भी पैसे नहीं है. तो मे बी मैंने इसको मिसजज किया है, मे बी इसको मैंने पहचानने में गलती की है क्या, ऐसा वो कंफ्यूज हो गया. पेज नंबर 8 हमने खत्म किया है. नाउ पेज नंबर 9. सी ऑन पेज नंबर 9. I asked, can you feed me? So राइटर ने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम. कैन यू फीड, कैन यू गिव मी फूड, कैन यू कुक? अनिल आस्क्ड अगेन. अनिल ने कहा ठीक है, लेकिन क्या तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक. आई लाइड अगेन. अगेन राइटर ने झूठ बोला, हरि सिंह ने झूठ बोला. हाँ मैं खाना बना सकता हूं. आई कैन कुक वेरी वेल.
If you can cook, then maybe I can feed you. Okay, अगर तुम खाना बना सकते, if you are able to cook food, then I can feed you. He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. So Anil took the narrator to his room. और रूम कहाँ था? ओवर जुमना स्वीट शॉप. जुमना स्वीट शॉप था, एक दुकान था स्वीट का, मिठाई का. उसके ऊपर उसका जो रूम था, उस रूम में ले गया अनिल और उसने हरि सिंह से कहा, हरि सिंह, अनिल टोल्ड हरि सिंह, I could sleep, means he could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. और जैसे कि पता है आपको कि हरि सिंह ने झूठ बोला था कि वो खाना बना सकता है, उसे तो खाना बनाना नहीं आता था. तो क्या हुआ? The meal that Hari Singh cooked that night must have been terrible. मतलब वो इतना टेरेबल खाना था, इतना हॉरिबल, इतना मतलब उसका टेस्ट लेस खाना था. तो उस खाने को अनिल ने स्ट्रे डॉग को दे दिया. उसको खाना पसंद नहीं आया और अनिल गेव दैट मील टू स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड हरि सिंह टू बी ऑफ. टू बी ऑफ मीन्स टू बी गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, गेट आउट फ्रॉम द रूम. बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग. But the narrator Hari Singh hung around. Hung around means stay there firmly. अनिल ने हरि सिंह को कहा कि तुम निकल जाओ, लेकिन हरि सिंह वहां से गया नहीं. वो वहां उसी जगह पर अड़ा रहा. Hung around and he started giving most appealing smile to the अनिल. अनिल के तरफ देख के वो हंसने लगा, हंसता रहा, जैसे कि अनिल का जो गुस्सा है वो गुस्सा कम हो जाए या निकल जाए. ओके, अपीलिंग वे. एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग ऑल्सो. और जैसे कि उसने हंसने की कोशिश की तो अनिल भी ऐसा हुआ कि अनिल भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था. ओके, अनिल ऑल्सो कुड नॉट हेल्प हिज लाफिंग एंड हरि सिंह स्टार्टेड गिविंग हिम अपीलिंग स्माइल. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. Later, he patted me on the head and said, "Never mind, he would teach me to cook." Okay. After that, he patted me. He gave a patting on Hari Singh's head, not back, sorry, on head, and said, "Never mind." Never mind means don't mind. Don't mind. Don't feel bad. He would teach him to cook. अनिल ने कहा कि चिंता मत करो कि मैं तुम्हें टीच करूंगा, सिखाऊंगा खाना कैसे बनाते हैं. सो अनिल ने उसको बोला कि वो उसे खाना बनाने के लिए सिखाएगा. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. देखो, खाना बनाने के साथ, ओके, विथ कुकिंग, अनिल ने कहा कि अनिल उसको मतलब नाम लिखना, मतलब पढ़ाई लिखाई, in short we can say he write his name and he would also teach Hari Singh to write whole sentences, मतलब पूरा एक सेंटेंस लिखना, अपना नाम लिखना और नंबर्स को ऐड करना. मतलब पढ़ाई लिखाई भी अनिल हरि सिंह को सिखाने वाला था कुकिंग के साथ साथ. I was grateful means Hari Singh was grateful to Anil that Anil was going to teach him cooking, then writing, reading, adding numbers. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. हरि सिंह को ये पता था कि अगर वो पढ़ना लिखना सीख गया, वो रीडिंग राइटिंग अगर सीख गया तो दुनिया की कोई भी चीज को वो अचीव कर सकता है. There could be no limit that he could achieve. मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो अनपढ़ था, इसीलिए वो चोरी करता था. एक बार वो पढ़ना लिखना सीख गया तो वो उसे जो चाहे वो अचीव कर सकता है, ये उसे पता था. He knew that. Hari Singh knew very well that he could achieve anything if he could read and write. And Anil was going to teach Hari Singh to read and write. So Hari Singh was very grateful to Anil. It was quite pleasant working for Anil. I made the tea and in the morning then would take my time buying the day's supplies
usually making a profit of about ₹1 a day. Long sentence, इसको ब्रेक करके हम पढ़ते हैं. It was quite pleasant working for Anil. Okay, अनिल के लिए काम करना बहुत ही प्लीजेंट था, मतलब हरि सिंह फेल्ट हैप्पी फॉर वर्किंग अनिल. सो in the morning Hari Singh made tea for Anil and then would take his time for buying the day's supplies. ग्रोसरी को बाइंग करने के लिए या परचेसिंग करने के लिए हरि सिंह चला गया मार्केट में. एंड ऑल्सो हरि सिंह यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ ₹1. जो दिन भर में वो शॉपिंग करता था अनिल के लिए, उस पूरे शॉपिंग में ₹1 का प्रॉफिट वो खुद के लिए करता था. मतलब अगर शॉपिंग समझो ₹40 की हो जाती है तो उसमें वो दिखाता था कि ₹41 की हो गई और उसका जो ऊपर का ₹1 है वो अपने पास हरि सिंह रखता था. ऐसे वो दिन का ₹1 प्रॉफिट करने लगा हर रोज की शॉपिंग में. आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड. और हरि सिंह को ऐसा लगता था कि अनिल को ये सब पता है कि दिन भर के शॉपिंग में से या परचेसिंग में से मैं ₹1 मार लेता हूं, तो लेकिन फिर भी अनिल का इसके बारे में कुछ कंप्लेन नहीं था या उसका कुछ कहना नहीं था, ऐसा हरि सिंह को लग रहा था. ओके, तो यहाँ हमारा लेसन तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन पेज नंबर 9 पे हमारा पैराग्राफ नंबर 4 कंप्लीट हुआ है. 4 कंप्लीट हुआ है. तो उसके आगे का लेसन हम आगे के वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.